Yes, very good evening to everyone. It is the wishes, blessings, and your respect, love, and trust for success system and me, which is working. And बार बार हमने यही कहा 8,900 के ऊपर 9142 के ऊपर जब तक है तब तक निफ्टी में हम बाइंग का ही व्यू रखेंगे. आई अंडरस्टैंड दैट ट्रेडर्स के लिए वो स्टॉप लॉस काफी दूर था, अफोर्डेबल नहीं था, बट रहना बाइंग में था. राइट, ज्यादा कुछ नहीं करना है. We are experiencing the power of Shiksha system on each and every event. बस सिर्फ इतना हमको करना है, इतना हमको ट्रेन होना है, इंक्लूडिंग मी, कि राइजिंग प्राइस एंड फॉलिंग प्राइस शुड नॉट अफेक्ट अस. एंड जो व्यू हम समझ के लेते हैं, जैसे मैं उस दिन कुछ 4-5 बात, 4-5 things you quoted. I don't remember exactly now. Have justifies, good above series justified, reversal by मास्टर सपोर्ट सेक्रीफाइस, ये सब जो पैसिव ट्रेडिंग के, पोजिशन ट्रेडिंग के जो कॉन्सेप्ट है, ये सब वेरी लेट का ट्रेड करना एंड फ्यू मोर कॉन्सेप्ट उस समय मैंने समझाया था कि इन सबको ध्यान में रख के हमने बाइंग का भी प्रोजेक्ट किया है. बस तकलीफ ये है कि वो बाइंग का व्यू हमारा ट्रेडर्स के एटीट्यूड के हिसाब से इट डज नॉट मटेरियलाइज इमीडिएटली. ऊपर नीचे होकर ही आता है. बट एनी हाउ, लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेरीज एंड लेट अस क्विकली कंप्लीट, क्योंकि काफी लेट हो गया है. एंड आई मैं 5 बजे जाग जाता हूँ, समटाइम्स बिफोर 5. और आज सवेरे तो अपना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग काम नहीं कर रहा था, तो अर्ली मॉर्निंग उन्हीं के साथ टाइम निकला. लेट अस वी अटेंड ऑल द क्वेरीज, बट कोई भी क्वेरी स्ट्रेच नहीं करेंगे एंड क्विकली कंप्लीट करेंगे. राइट, anyone else, anyone query? Oh, no queries. किरण बोलो. યસ સર. બોલો સર મારું એક સજેશન છે. બધું અલગથી કાલનો વેબિનાર આપણે આખો કિરણ ઓનલી ક્વેરીઝ. સોરી મેં તમને મ્યુટ કર્યા. જે બી સજેશન્સ છે, જે કંઈ બી વાત છે, ફોન પર અલગથી બી થઈ શકે. કમસે કમ આજનો દિવસ છે ને વેબિનારમાં લાંબી ચર્ચા ન કરીએ તો સારું. ટૂંકમાં ક્વેરી પૂછો, પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ, અને ક્વેરીનો જવાબ લઈ લ્યો. બસ તમે પાછો અનમ્યુટ કરું છું. સજેશન્સ બધું પછી આપજો, ક્યારેક બીજી વાર, નહીં તો ફોન ઉપર. બોલો કિરણ. હા સર. સર VDL ઉપર પોસ્ટ ઓપનિંગ ટ્રેડ સેટઅપમાં કાલે સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલ થયું હતું. સેલિંગના સેટઅપમાં આવતું હતું. આજે પણ સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલ થયું છે અને પછી બાય થઈ ગયું છે, એટલે FR થઈ ગયું કહેવાય. તો આને કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું આપણે? સેલિંગના સેટઅપમાં આવતું હતું. લેટ મી ચેક. कौन से ये सेटअप में लो टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड और बोथ?
यस यस। लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग और नहीं लाइव ऑपॉर्चुनिटी सेलिंग में नहीं આવતું હોય કોઈ રીતે જ આવતું હતું સ્ટોપ એન્ડ રેવ્સ ટુ બાય સેલ થયું હતું લાઈવ ઓપોર્ચ્યુનિટી સેલિંગ આવવું જોઈએ, પછી બાકીની 5 વાત છે લો टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल हो, या तो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होके लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले, સર મારી વાત સાંભળો આઈસીઆરસી ઓપન થયું હોય મંડે ના તે એમાં લાઈવ ઓપોર્ચ્યુનિટી સેલિંગ માં કેવી રીતે આવે? કાલે આવતું હતું, આજે નહીં આવ્યું હોય, કાલે તો આવતું હતું. કાલે આવતું હતું કે નહીં તો હું જોઈને કહી દઈશ, પરંતુ લાઈવ ઓપોર્ચ્યુનિટી બાઇંગ સેલિંગ માં આવતું હોય તો જ કરવાનું છે, નહીં તો નથી કરવાનું. वैलिड सेल ही नहीं है सबसे पहली बात, राइट? इस वीकेंड हम સર आए કરેક્શન સેલ હતું, આજે બાઇંગ આવ્યું છે, કરેક્શન સેલ માં ચાલતું હતું, બ્લુ કલર જ હતો કાલ સુધી ને આજ સુધી પણ બ્લુ કલર હતો, પછી થઈ ગયું છે. હું બોલું, વેલિડ સેલ તો હોવું જોઈએ ને. વેલિડ સેલ ન હોય તો કમસે કમ આ ડાર્ક ગ્રીન ની સિરીઝ ચાલે છે, ડાર્ક ગ્રીન ની સિરીઝ ચાલે છે ને. પોસ્ટ ક્લોઝિંગ ક્લાઇમ્બિંગ બાય બી 8495 હાયર સે ટ્રેડ કરી લીધું એટલે ડાર્ક ગ્રીન એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું ને. અને ડાર્ક ગ્રીન માં કરેક્શન સેલ ઇઝ કરેક્શન સેલ, તમે પોતે જ બોલો છો કરેક્શન સેલ છે, તો અકોર્ડિંગ ટુ ટ્રેન્ડિંગ લેગ સેલિંગ તો આપણે કેવી રીતે વેચી શકીએ? સર વેચીને આપણે આ તો ટ્રેડમાં આવતો તો આમાં વેચવાનું કેટલું હોય? 23.6 एफसी। आईसीआईसी ओपन हुआ और अर्ली सेलिंग करनी हो तो 10:30 के बाद डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे अलग से 11 तारीख को स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 8140 एक मिनट है, हाँ बोलो किरण। डेली टाइम फ्रेम में आईसीआईसी ओपन होके स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, व्हाट इज योर स्टॉप लॉस? 8155 बराबर, और आज 8155 ट्रेड कर लिया उसने, तो सेलिंग की पोजीशन क्या होनी चाहिए? रिवर्सल बाय हो गया, तो रिवर्सल बाय में उल्टा हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। 8155 का नेक्स्ट लेवल 8240 है, ये आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ होनी चाहिए। सबसे पहली बात सेलिंग थी नहीं। किरण आर यू देयर? यस सर। सबसे पहले तो सेलिंग ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किरण हाँ बोलो। हेलो। सबसे पहली बात, क्या हेलो हेलो करते हो यार? जो कंप्लीट करना है इमीडिएटली उसको तो लंबा कर रहे हो। सबसे पहले वीकली में वैलिड सेल होना चाहिए, कम से कम वैलिड बाय नहीं होना चाहिए, तो वैलिड बाय की सीरीज में था, इसके लिए नहीं बेचना चाहिए था। दूसरी बात, अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल को देख के अगर आपने बेचा है तो आज 8155 का नेक्स्ट लेवल है 8240, और ये आरएमएसएल हायर खुलते ही
जैसे ये ट्रेड किया ना ऊपर की तरफ, वहां पे हमको बाइंग की पोजीशन, सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए। और जो भी लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में आता है उसके बाद रिप्लेसमेंट हो, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो देखिए। और सबसे बड़ी बात, वीकली में मैं तो एक ही बात को पकड़ के रखूंगा कि देयर इज नो वैलिड सेल, तो हम कैसे सेल कर सकते हैं? ठीक है, કરેક્શન સેલ હતું, કરેક્શન સેલ વાળું થઈ ठीक શકે ને है सर, तो વેલિડ વાંધો નહીં, વેલિડ છે। તમારે આર્ગ્યુમેન્ટ જ કરવી હોય કિરણ ને, તો કોઈ જગ્યા જ નથી વાત કરવાની। કરેક્શન સેલ ઈ ટ્રેન્ડિંગ લેગમાં બાઇંગ નું કરેક્શન સેલ છે કે સેલિંગ નો સેલ છે? કરેક્શન સેલ લેગ જે છે ઈ અપ ટ્રેન્ડ નો છે કે ડાઉન ટ્રેન્ડ નો છે? બાઇંગ નો છે કે સેલિંગ નો છે? અપ ટ્રેન્ડ નો છે, અપ ટ્રેન્ડ નો છે। કરેક્શન સેલ એટલે બાઇંગ નું કહેવાય કે સેલિંગ નું કહેવાય? બધી ખબર જ છે ને તમને? બધી ખબર જ છે, તમને પછી દલીલ ઉપર કેમ આવી જાવ છો? આઈ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ। સિસ્ટમમાં બી લોસ થઈ શકે, આપણી પણ ભૂલ થઈ શકે, સ્વીકારવાનું છે। હવે સર એ પૂછું છું કે આમાં એફઆર થયું તો એવી રીતે રિવર્સ સેલ થયો તો બાઇંગ કરી શકીએ? રિવર્સલ બાય ઓલવેઝ બેસ્ટ બાય છે ને? રિવર્સ બાય ઓલવેઝ। ઓલવેઝ બેસ્ટ। ओके सर, क्वेरी पूरी। यहाँ पे 76 हाफ था डार्क ग्रीन में रिवर्सल बाई, ये 18/4 को ही 76 हाफ ट्रेड कर लिया उसने, और वहां से फिर टूट के उसी 76 ही आया, 76 ही आया, 76 ही आया, 76 हाफ ये ट्रेड कर लिया डार्क ग्रीन में। उसका पोस्ट क्लोजिंग क्लाइमिंग बाई 84.95 भी ट्रेड कर लिया, तो पोस्ट क्लोजिंग क्लाइमिंग बाई ट्रेड करते ही डार्क ग्रीन एस्टैब्लिश हो गया, 76 हाफ ट्रेड करके रिवर्सल बाई हो गया, तो तब से ये बाइंग ही है, जब से इसने 76 ट्रेड किया है। ओके सर। મારા કરતા વધારે જો ને એવી મારા મનમાં તમારા માટે છાપ છે, પરંતુ પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? પોતાનો કક્કો પકડી રાખવાનો, ગુજરાતની એકદમ પ્યોર ભાષામાં કહીએ તો એવું નહીં કરો। બજારની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ ન ચાલે, સિસ્ટમની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ ન ચાલે, ઠીક છે? આ પહેલી વખત નથી થયું કિરણ, હંમેશા આવું જ કરો છો, હંમેશા આવું જ કરો છો। મને કઈ વાંધો નથી, 5 મિનિટ 10 મિનિટ વેબિનારમાં બધાની ખરાબ થશે, નો પ્રોબ્લેમ, પરંતુ અકાઉન્ટમાં લોસ આવશે તો કેવી રીતે ચાલશે ને? આપણી પોતાનો વ્યૂ અગર પકડી જ રાખશું કેવી રીતે ચાલશે? અકાઉન્ટ સફર થાય ओके ને। सर। Any query please? નિલેશભાઈ બોલો। નિલેશ, और अबोल क्या मान लो अभी ये सब वेबिनार्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये बात सिर्फ शिक्षा परिवार तक नहीं है, जो शिक्षा में नहीं है ना वो लोग भी वेबिनार सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी तो अपना इमेज जो है वो थोड़ा केयर करना पड़ेगा ना बात करते समय वेबिनार में। Hello, sir. बोलो। Yeah, I want to know about Cipla. It is not in any of your list as of now, but in pharma, there is all other stocks are doing very well. This guy is continuously going down. So, what is our implication? Let us understand from the point of view of RAR and stop and use to buy sell. Yeah, it has seen a couple of SNR to sell in daily time frame. For last 2 days, it has been seeing that.
if according to trending leg it is dark green, all stop and use to Right. sell until low WTP is not traded on lower side. It is a correction Ji. sell. Okay. Give me one minute. Give me only one. Yeah. Three 340. You want me to share the view from my side about Cipla? Yes, sir. Let us take it from RAR. Here good above series justified, Yes. Here, sir. and after that the immediate post closing climbing by 642.20, Right. which is never traded No. so far. So far 642. Yes, it is Is not not. traded. No. The kilo is 355. Oh, बहुत काफी दूर है, right? Wow. So let us. Ji. And master high is 435. Right. 435 and 355 ये ध्यान में रखते हैं. Now after this Vodafone series justified, the PCS 559 not traded, the Not PCDS 526 not traded, the PCS 575 not traded, and it has come up to 570 only. So until post closing climbing by is not traded on higher side, it is retraced till PCS or PCDS 575, 576 here. And from here again, the PCR is 600 rupees, which is not traded. Here PCCB is 598, not traded. Here post closing climbing by 615 traded on higher side, Yes. and immediately stop and use Sell not others. traded. Great support तो मिला ही नहीं देखो. मिला ही नहीं. RMSL higher, stop and use to sell. So this 617 is also never traded, right? Correct. तो बाइंग आया ही नहीं. गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाई होकर अब तक बाइंग अभी आया तक ही नहीं. नहीं. And instead it is traded once The PCS PCD 570. or PCDS, it is traded once, right? Today it has Here gone below that also. this 582 is not traded, but 596 के ऊपर भी नहीं गया. This is 583. Today PCDS is traded, so there is no Right. buying. And above all, according to RAR, good above series justified. It is never traded the climbing buy. Follow-up buying has not come. We can use this language. Follow-up buying has not come, and therefore it is journeys towards 435 or even 355. Okay. Until from here, PCR is not trading on higher side and Okay. closes with support, or post closing climbing by is not trading on higher side, we can project the journey till 430. master high 435 or even 355. Okay. Now secondly, second concept जो मैंने अभी तक आपको शेयर किया है, according to stop and use to buy sell. Fine, sir. We see later whatever 617 stop and use to sell, 578
is not traded. Right. यहाँ से stop and use to buy occurred, but the PCB 619 highest among this, either high or BDP or PCCB is not traded on higher side, so stop and use to buy in action has not come. Not come. Here stop and use to sell 612, so यहाँ पे 570 should trade on lower side, which is not traded, and stop and use to this 612 is also unable to trade. Here also 608 is never traded. Here 608 traded means reversal buy occurred, Right. but facing stop and use to sell Sell immediately. immediately on same day. And now whenever 588 80 trades on lower side, it will confirm stop and use to sell in action. Action, which is happening. Which 588 50 it is coming here, but not traded on lower side, but little bounce back it is giving, and finally this Again, stop and sell the 582 is traded today on lower side. This 605 stop and use to sell PCDS 582 is traded on lower side. This stop and use to sell इसका भी PCDS is traded on lower side. So according to justified good above series occurred but never follow buying has never come. According to stop and use to buy sell also, stop and use to sell is in action. 2 point. Third, here 632 65 was the high. Recent high हुआ आया, and recent high never traded. Never traded. And instead today it has managed to trade the recent low. तो यहाँ से बाजार बढ़ना बंद हुआ तो अपना चालू हुआ from 633. 633. And who triggered the fall? 580 60. Right. कल हो सकता है कि जो माहौल है उसमें any rise in price is a bailout opportunity, bargain selling opportunity, and any reversal from there, one stop and use to sell is a very good sell. Tomorrow it is a cutting the flying kite. So usually whenever cutting the flying kite occurs, usually it's difficult to trade the lower band and approaches BDP. Okay. Let it approach BDP. कल आगे में से हायर ओपन होगा, सब कुछ जो होता है होने दो. One stop and use to sell. Selling opportunity, but not a buying opportunity. Okay. Or existing holding should be squared up at that. Yes, definitely. Because all this until 623 is traded. Right. We will definitely, I should not use the word definitely, sorry, I withdraw my words. It will approach 435 or even We can expect 355. that. Yeah, from there it has started actually the journey. Yes. And Cipla weekly, what it is saying, 569.75 से stop and use to buy हुआ, and post closing climbing buy was 615.70, and this 615.70 next level is 630.20 जो trade नहीं किया, right? So stop and use buy in action has not come. Then here also 615.70 next level is 625.65. So 2 weeks no, इसने stop and use to buy action में आने के लिए कोशिश की है weekly में, but for 1 rupee 2 rupees it is missed stop and use to buy in action. And now fresh round of selling will begin in Cipla when reversal sell occurs by trading 569.75 on lower side. Lower side. 569.75 का next level है 559. We are very nearer to that. Lower And side. we are very nearer to that. अगर ये 559 लोअर साइड ट्रेड कर लेता है और कर लेगा, so इतना देखने में समझ में आ रहा है. इस वीक 559 trades on lower side and closes with PCR. So the journey is 325. Okay. Right. दो
buying in No Cipla. buying. No buying in. Right. Any rise in price It's a is bailout a opportunity. opportunity, bailout opportunity. It will be known as dead cat bounce. Sorry. It will be known as. Dead, Okay, voice is dead cat. मरी हुई dead बिल्ली. cat bounce. Oh, yeah, dead cat bounce. Correct. Okay, है ना? right. Thank you. Yes, sir. Good evening. Sir, Apollo Hospitals, Delhi, ये हमारा सेलिंग सेटअप था, ये सिप्ला कहीं सेलिंग सेटअप में नहीं लिखा हुआ है, इतना डिस्कस किया हमने जो मैंने क्या नहीं सर, सिप्ला इज नॉट देयर शायद इसलिए भी क्या ये सिप्ला और ये सब फार्मा वाले का ना रोज कोर्ट का कुछ ना कुछ फॉरेन कंट्री का न्यूज चलता रहता है अवॉइड ओनली हाँ अपोलो हॉस्पिटल सर इसने रिसेंट ये ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करके चल रहा है एंड वहां से ये लास्ट 2 दिन से यानी कल आरएमएसएल हायर खुला था बट इट कुड नॉट ट्रेड दी क्लाइंबिंग बाय और ऐसे भी वो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट जो मेरा सेलिंग का सेटअप दिया हुआ है वो है सेलिंग सेटअप था हाँ सर एंड 1311 इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड राइट 1311 वाज ट्रेडेड एंड वहां से वो जिस दिन 1311 ट्रेड हुआ इट केम टू 1261.75 1311 ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हुआ है हाँ उसके बाद स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ उसका पीसीसीबी जर्नी है 1345 डीडीपी 1399 और 1359 यहाँ पे एक बाउंस बैक पुल बैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो आएगा तो नेक्स्ट डे 45 तक ही आ रहा है वो 45 वहां तक ही आया है तो एनी रिवर्सल हियर you have to look for selling opportunity and any reversal we from will only here, look for selling opportunities only PCS 1296 is not traded PCS 1293 is not traded उसके बाद में stop and use to buy होकर PCS is not traded on lower side आज मैथमेटिकली किया है बट देयर इज नो फ्रेश रेजिस्टेंस बट देखो ना it is trying to trade 1296 then here 1293 almost trading कर लिया ठीक है fresh resistance दिया and here also it is traded on lower side so there is no buying in Apollo Hospital also क्या हो रहा है कल इतना बढ़िया ऊपर खुलने वाला है यूजुअली मैं SGX निफ्टी नहीं देखता हूँ लेकिन मैसेज इतने सारे आ गए कि यू नो बोले 400 पॉइंट ऊपर है 300 पॉइंट ऊपर है और हम वेबिनार चालू करते ही सिप्ला अपोलो हॉस्पिटल अवॉइड बाइंग लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे सीरीज इनएक्टिव है बट निफ्टी वगैरह में तो बाइंग है ही बाइंग है वहाँ पे बाइंग है मैंने एक बाइंग की लिस्ट भी भेजी वो भी प्लीज ट्रैक कीजिए वहाँ पे जहाँ भी पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करे प्लीज डोंट मिस टू बाई भले ऊपर दिखेगा बहुत ऐसा दिखेगा लेकिन बाइंग करना राइट सर उसी में एक क्वेरी एक और है सर अपोलो हॉस्पिटल भी कंसीडर्ड कोलपाल इज द अदर वे सर बेसिकली कोलपाल हमारे बाइंग के घर में था बिकॉज वो रिएक्टिव होके चल रहा था एंड according to what concept reactive Kudabo series reactive 1549.80 ट्रेड किया yes. होगा तो पर वो उस दिन दोनों हुआ है स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल बाय सेल दोनों हुआ था 1549.80 का नेक्स्ट लेवल 1595 इज नॉट ट्रेडेड करेक्ट तो रिएक्टिव होकर उसको एक बार सपोर्ट तक आना चाहिए 1466 तो वहां तक वो आ गया वो आके गया था
बट बाइंग नहीं आई, और बाइंग आने के पहले वहाँ नहीं है। गया, तो बाइंग आई Right. नहीं, रिएक्ट के फॉलो बाइंग नहीं आई, and instead this 1523 is traded on lower side, this 1473 is traded on lower side, this 1446 Correct. कहीं ना कहीं इतना उससे तो पीसीएस या पीसीडीएस लोअर से ट्रेड कर लिया होगा, तो ये एक बार के लिए बाइंग में से निकल गया प्रिंसिपली जो हम सीखे हैं, बट जब तक किलो लोअर ट्रेड नहीं करता है 1065 राइट सर, और एक आज सर वो आया था किलो के किलो तक तो नहीं आया है, तो बाइंग करना चाहिए। सॉरी सर, एक पोस्ट क्लोजिंग क्लेमिंग में ट्रेड करे, रिसेंटली किसे ट्रेड करके चल रहा है, किसी सीडीएस से ही चल रहा है सर, 1270 ट्रेड नहीं किया है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ट्रेड नहीं किया है, 1322 ट्रेड किया हुआ है, 1322 ट्रेड किया हुआ है, तो उसका 1380 रेजिस्टेंस मिल गया, राइट, 1380 से वापस टूट रहा है, तो यू नो ये 1280 जोन तो तोड़ देगा यार, बहुत आराम से तोड़ देगा। करेक्ट, हो क्या रहा है भाई, ये टॉकिंग, चलो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, कितना भी अच्छा न्यूज हो, जहाँ पे सेल है वहां पे हम सेल की बात कर रहे हैं, और हम लोग कुछ भी करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आने वाले दिनों में सिप्ला की चाल समझे, अपोलो हॉस्पिटल की चाल समझे, कोलपाल की चाल समझे, बाइंग मार्केट में भी अगर सेलिंग की स्क्रिप्ट्स है तो वो कोई भी राइज इन प्राइस है, वो बाउंस बैक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, पुल बैक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ के उसको ट्रेड करो। एवरीवन, ये 1344 45 दूर से ट्रेड कर लिया तो 1287 भी ट्रेड कर लेगा, और ये जो किलो है 1065 बढ़ के अल्टीमेट तक वो आ जाएगा। और ऐसा होता है तो मैं बहुत बार कहता हूँ, जो भी बड़े बड़े व्यू हम यहाँ पे वेबिनार में शेयर करते हैं, उसके बाद में वो सही गया कि गलत गया, जिन्होंने भी व्यू लिया है उसको ट्रैक करके वापस वेबिनार में शेयर करना चाहिए, और वो होता नहीं है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। राइट, हियर शेयर करना, नहीं सर, डेफिनेटली जाता है तो शेयर करना, डेफिनेटली। और सेकंड सर, हमने निफ्टी व्यू ले लिया है, एक्चुअली आई जॉइंड लेट, निफ्टी नहीं, मैं नहीं लिया हूँ, ओके ओके फाइन, वी विल टेक अप नाउ, ओके श्योर, एक्चुअली शुरू में ही लेना चाहिए, बट आज नहीं लिया। और किरण है ना, मुझे गन पॉइंट पे रखा, चार मैसेज आ गए उसके, तो वेबिनार कितने बजे ले रहे हो, मुझे तो घंटा भर बोलेंगे तो क्या घंटा भर लेट रखोगे क्या, ये वो पता नहीं कितना ही बोल दिया उसने। जतिन हाँ बोलो, एक्चुअली आज का वेबिनार है ना, शायद कैंसिल हो जाता, तो किरण ने 4 मैसेज करके है ना। हाँ सर, बोलो सर अभी एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी जैसा मुझे लग रहा है, एंड यू नो दिस इज जस्ट looking at what happened today, the announcement, you know what may happen in the market. So is there any better way to select, you know, stocks if you have limited capital, what to play or what to trade in a scenario like this where the biggest movement can happen? So I was just trying to think, if we go to our search option and then look for monthly trades and specifically look for possible reversal trades in a monthly time frame, is that one way to look at it? जतिन, Yes sir. Sixa system, after so many years, it has been defined, designed, framed only in 5 scenarios. Yes sir, agreed. Active Siksha is framed in 5 scenarios. In buying judgment, मैसेज आ गया हिंदी, बाइंग जजमेंट में बाजार या तो फॉलिंग चैनल में ओपन होगा या राइजिंग चैनल में ओपन होगा। इन फॉलिंग चैनल opens into ICFC and lower time frame trades with support, we buy.
re-entry into FC or re-begin to buy is also another scenario, buying in FC. And third Right. scenario is fresh resistance in FC and stop and use to buy in FC above WDP. This is the three scenarios, which is the most easiest scenario and very effective scenario also, because टूट के बढ़ता है. Another two more Right. scenario in rising channel to buy ICRC opens or RMSL higher opens. In both And cases, fresh buy support. only when retraces and low time frame trades with support, and also current time frame also trades with support, followed buying आना. RMSL higher compulsory it has to retrace and climbing by trade करना. ये Right. ये 2 मिनट में मैंने पूरी शिक्षा, जो एक्टिव शिक्षा है ना, वो मैंने कह दी. Yes, sir. इतना सिंप्लीफाई करके इतना कर लिया. जब आप पहले थे तब इतना सिंप्लीफाइड नहीं था. तो इतना Yes, सिंप्लीफाई sir. हमने किया है, पूरा कंप्यूटराइज कर दिया है, रेडीमेड ट्रेड सेटअप बन गए हैं. तो उसी को फॉलो करो, रेंडमली कुछ भी मत पकड़ो. नहीं, रैंडमली नहीं सर. सो मैं वीकली ट्रेड देख रहा था, पर अभी वीकली के बदले व्हाट माय क्वेश्चन वाज इन अ सिनेरियो वेयर आप 3 साल के बाद वापस आए हो, 3 महीना तो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप वीकली में रहो. यस सर. 3 महीना तो रहो. सर मोदी जी रोज रोज नहीं करेंगे ना सर अनाउंसमेंट. अरे इट्स अ बिग यार, अनाउंसमेंट. साल में 4 मेजर राइज आएंगे, साल में 4 मेजर फॉल आएंगे. ऐसा मुझे नहीं Yes, बोलना sir. चाहिए ऑथोरिटी के साथ में. Sir, I agree. I agree. I was just trying to think that is there another way to kind of look at it. ऐसा ऐसा मत करो. ऐसे है ना, आज अनाउंसमेंट आया, कल कमा लेना है, वो एटीट्यूड मत रखो. अच्छा, Yes, sir. let me complete शिक्षा. This is 5 trades in active शिक्षा. Another Yes, 2 sir. trades physical trading, which will take us to passive trading, is RAR. RAR में हमारे Right. पास 3 trade है: good above series justified, good above series reactive, and good above series inactive. 3 trades in RAR. And Right. तो मैं एक ही ट्रेड कहता हूँ अकॉर्डिंग टू RAR. एंड सेकंड ट्रेड इज अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल. डार्क ग्रीन है, स्टॉप एंड यूज टू सेल अकर्स. जब भी वो रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड करे, बाय करो. डार्क ग्रीन है, स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, जब भी वो स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन आवे, बाय ट्रेडिंग BDP और पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ऑन हायर सेट व्हिचएवर इज हायर, बाय करो. Right. 5, बस इतना ही है. ओनली 7 सेटअप. ये 7 सेटअप Yes. के बाद भी जाओ. कम से कम 6 महीना आपके लिए कह रहा हूँ जतिन, क्योंकि मैं नहीं चाहता Yes, हूँ sir. कि इतने के बाद आप वापस आए हो और फिर चले जाओ. नहीं सर, अभी चांस कम है जाने का वापस. देख लीजिए पावर सिस्टम का. ठीक है ना. Sir, एक क्वेश्चन था. ICICI Bank today, as you were guiding yesterday, that it was a very good buy in ICICI. But the buying, buying could have been done in ICICI, but a better, safer buy would be when the stop and reverse to buy happened, यस. when the fresh resistance was created. अपना जो लेवल था, कौन सा लेवल था? ICICI बैंक. Yes, sir. बैंक के सेक्टर में 323 का लेवल था. That 323 level today traded on lower side and immediately stop and use to buy has occurred today. So this suggests buying intact है, buying का view intact है, and you should not miss to buy whenever one opportunity is to buy with the stop loss of 300.80 itself, but real confirmation will come when 339.55, 345.35 trades on higher side and uses the PCS. Sir, so today's journey in the stop and reverse, if you open today's plan for 12th May, A fresh resistance in FC and stop and use to buy हुआ. correct. When 319 was traded, 319.50, that's when stop and reverse to buy happened. So the journey for this. लेकिन आप सबसे पहले है ना, एक काम करो, आई रिक्वेस्ट यू, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में आपको एक रिपोर्ट दिया हुआ है
support ratio summary. It was not available before 3 years. Now we are having all Okay. the scenarios. इसको अच्छे से master करो. And जो support ratios Okay. log है, master करो. आपको है ना वेबिनार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हिमांशु सा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई नो कि आप क्या कर सकते हो. ये आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट, रीबिगिंग टू बाय, री एंट्री इनटू आरसी, इसको मास्टरी कर लो. प्रेस सपोर्ट, अपर बैंड, स्टॉप एंड यूज टू बाय, मास्टरी कर लो. और हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन stop and use to buy occurs and approaches 14.6%. How market behaves when stop and use to buy occurs in FT and approaches upper band. How market behaves when approaches RC 100%. How market behaves when approaches RC 61.8%. How market behaves when opens ICFC and approaches RC 23.6, and how it behaves before trading the upper band. इतना है ना, बहुत अच्छे से ऑन बाई साइड, सेल साइड, स्टॉप एंड यूज टू बाई, ये सब कर लो. एंड ये जो सपोर्ट रेशियोज लॉग जो है, इसको अच्छे से सीख लो. Right. Clearly, literally you write whatever is mentioned in support रेशियोज log. भले देख देख के लिखो, बट समझ समझ के लिखना चालू करो. दिस इज हाउ वन शुड बिगिन इन शिक्षा फॉर फर्स्ट 3 months. Right. छोटे 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 ट्रेड लेते रहो, बस कमाने के लिए नहीं, ग्रिप मास्टरी Right. लेने की, है ना. कमाने की जिसको जल्दबाजी है ना, वो कभी कमा ही नहीं सकता है. जिसको कमाने की Just जल्दबाजी going back to ICICI. बाजार में. So going back to ICICI, I just have one more follow-up question, if it is open. First window में. So इधर stop and reverse to buy हुआ है, but weekly stop and reverse to buy has not happened yet. ऐसा सब So नहीं it will be- लिखा है यार. कितना क्लियर लिखा है वो जो मैसेज है ना, उसमें इतना ही लिखा है कि this Yes, view yes, is yes. तो क्यों हम यही वो तो तो special करते trade का बोल रहे हैं. Special trade. काफी पुराने पार्टिसिपेंट है ना, इसीलिए भी छूट गए कि एक तो कंप्यूटराइज नहीं था, इतना सपोर्ट रेशियोज लॉग नहीं था, इतना फ्रेम ट्रेड सेटअप नहीं था, काफी कुछ मैनुअल था, काफी कुछ सोचना पड़ता था. और दूसरी Correct. प्रॉब्लम ये टाइम फ्रेम जंप करते थे. डेली का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो वीकली का लोअर बैंड रख लिया, वीकली का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो मंथली का लोअर बैंड रख लिया, फिर जाके वो लॉन्ग Right. टर्म इन्वेस्टर बन गए, क्वार्टरली हाफ ईयरली का स्टॉप लॉस रख दिया. क्यों ऐसा करते हो? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है. मैंने जो मैसेज भेजा है उसमें नहीं, लिखा ही नहीं. सर जो आपका वो लिस्ट था उसमें तो बस there has to be a follow-on support which has come today. So now you basically hold after that. जितना लिखा है उतना ही करो ना, बाकी भी करो, वीकली भी करो, मंथली भी करो, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से, वो भी करो. बट फेवरेबल है तो अडॉप्ट करो, अनफेवरेबल है तो इग्नोर करो. बहुत सिंपल है. Right, sir. Okay, sir. Thank you. Keep it simple, please. Keep it simple. Over analysis is a paralysis. कमलेश भाई बोलो. जय श्री कृष्ण सर. जैसे સર બેંક નિફ્ટી તો તમે હમણાં બોલવાના છો ને? શું કહેવાનું હવે, કઈ કહેવા જેવું કઈ રહ્યું જ નથી. सर आपने अभी बोला वो किरण भाई का, तो उसको आपके थ्रू कुछ मैसेज दे सकता हूँ क्या? बोलो ना, किसी को मैं कभी रोकता ही नहीं हूँ. नहीं, आपकी परमिशन तो चाहिए. नहीं, उस दिन वो कुछ, मैं तो लास्ट में आया था, लेकिन मैंने ऐसा सुना कुछ कि वो बाइंग नहीं हो पाया, आपने सेलिंग बोला था, ये वो बाइंग नहीं बोला था और वो ऐसे हो गया. फिर वो आज वो 9046 तक ही आया, तो कुछ बाइंग हुआ कि नहीं. और शिक्षा सिस्टम को, उसके पहले भी मैंने वेबिनार में बोला कि शिक्षा सिस्टम को अगर वो बाइंग नहीं करवा के जाता है या कुछ भी गैप अप गैप डाउन खुलता है, तो शिक्षा सिस्टम वालों को वो करवाने आता ही है. वो मुझे कॉन्फिडेंट है. बराबर है. और अब 9046 आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, तो वो मैं बोला नहीं चाहता, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन हो गया होगा ना किरण जी को? એ બધું ક્યાં થોડું કિરણ પાસેથી છે ને એપ્રિસિએશન ની આશા રાખવાની જ નહીં.
અને એ સારું છે. અમુક લોકો છે ને કે આલોચના કરતા રહીએ, દલીલ કરતા રહીએ તો શિક્ષા સિસ્ટમ ઇમ્પ્રુવ થાય. यहाँ पे It is not Alokman, it is Dalil, sir. It is a healthy discuss, no? कौन सा डे था जब ये Why ना should you take, FC why should 261 you take it as a negative discuss? ठीक है चलो ना यार, एक लेट वेबिनार हो गया, इसके लिए तो भी करेंगे. जी यहाँ पे 9034 की बात की है तो हमने बहुत बार ये देखा है, ये FC 261.8 का पावर था, ये कुछ भी नहीं है. यहाँ नहीं सर, पे मेरा बैंक निफ्टी का क्वेरी है, प्लीज अब बाद में दीजिएगा. 1.8 था 4 मई का, वहीं से वो बढ़ा है. 9625 ट्रेड करके सपोर्ट से बंद होना तो ही निफ्टी स्ट्रांग रहेगा. चलो उसमें निफ्टी में आते हैं वापस. मेरे हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में लेके आते हैं. आपका कहना यही है कि भाई बैंक चूक गए तो भी एक बार बैंक दिलाने आता है, तो किया कि नहीं किया आप उसको पूछना चाहते हो ना? तो कम आप पूछो. नहीं वो पूछना ही चाहिए सर. उसमें वो आज किलो ट्रेड कर दिया और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, तो उसका एकदम सिंपल ही 2 लाइन में क्वेरी करना है, अभी ज्यादा कुछ पूछना ही नहीं है सर. हाँ, आंसर भी 2 लाइन में होना चाहिए, क्वेरी भी 2 लाइन में होनी चाहिए. बोलो बोलो. बोलो. Week below occur, kilo traded and stop and use to buy. So what is the thought process, sir? Please. कहाँ सिखाया हमने? बट किलो ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, इसका मतलब उसको किलो ट्रेड नहीं करना है, मास्टर है तक आना है. 21,122 18,031. बस उतना ही सर, बाकी नहीं. तो फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय कर लीजिए सर, अगर कुछ आप गाइडेंस कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू RAR ये भले गोड अबव सीरीज जस्टिफाइड है, लेकिन रेड में है, इसलिए नॉन ट्रेंडिंग है. क्या क्या पूछना क्या चाहते हो? सर किलो ट्रेड 2 लाइन में अगर बाई हुआ है मतलब उसको किलो के नीचे नहीं रहना है, मास्टर हाई तक आना है बस. और 2 लाइन में अगर पूछूं तो ये जो अपना ये पिंक वाला टॉप था वो आज दूसरा कलर हो गया और स्टॉप एंड यूज टू बाय आज ही हो गया, तो वो पिंक टॉप भी आना और पिंक टॉप ट्रेड करना, ऐसा नहीं बोल सकते. ये पिंक वाला टॉप जो कलर आप बोल रहे हो कुछ बदल जाता है कलर, वो ट्रेड करना ऐसा नहीं बोल सकते. जब आएगा ना तो वापस याद दिलाना, फिर बात करेंगे उस समय उसका. यहाँ पे नहीं करते, उसका मतलब कुछ और होता है. either we'll speak separately or when it approaches there that time we'll speak. बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, बट लेट अस नॉट टेक अप नाउ, क्योंकि अभी वो भाव नहीं चल रहे हैं ना. नो प्रॉब्लम. जब वहां पे आएगा तो वापस बात करेंगे, उसका इंपोर्टेंस के साथ बात करेंगे. आएगा तो बात करेंगे, मीन्स आएगा ना. आई एम सॉरी सर. आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? किलो ट्रेड करके अगर किलो स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो मास्टर है तो आएगा ना. जी जी सर, ओके, थैंक यू. कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल. जितना सिंपल रहेगा ना सीखना समझना, ट्रेडिंग हैज टू बी वेरी सिंपल, अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी वेरी सिंपल. हाँ, एक बार सीखने के लिए कुछ कुछ हो सकता है, बट अदरवाइज नहीं. निखिल बोलो. निखिल बोलो ना. ठीक है, निश्चित बोलो. हेलो. यस यस. यस सर. सर मेरे लिस्ट में आज
6 scripts came into buying, stop and reverse to buy, जो मैं ट्रैक कर रहा था, राइट? उसमें से आई कुड मतलब मुझे पता था कि आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू ऑल 6 scripts, but I could just hold on to 3 and I had to exit 3 because of some I don't know, मेरे I got very confused in the end. So I just wanted to know कि वो जो 3 scripts मैंने होल्ड नहीं किए है, उसको होल्ड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इफ वी कैन टेक एचडीएफसी लाइफ, सबसे पहले तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट में डाल दोगे ना, कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में उसको सर ये सब सर ये सब जो भी 6 स्क्रिप्ट्स बाइंग आई है वो सब उसी में है कि कीलो ट्रेड नहीं हुआ है और स्टॉप एंड टू बाय हुआ है आरएआर के साथ। स्क्रिप्ट सर वी कैन टेक एचडीएफसी लाइफ फॉर एग्जांपल। ये आपके स्पेशल सिनेरियो में भी था बाइंग के, सो आई वाज ट्रैकिंग इट पर्टिकुलरली। मेक सेवन मैसेजेस में भी हूँ, क्यों मैसेज करते हैं इतने सारे, वो क्या पढ़ूं मैं, क्या जवाब दूं? एक आरएआर के लिए बात है, तो आरएआर का रिपोर्ट जो है और आरएआर के अकरेंस जो है ओल्ड वर्जन में फिर से रीलोड हो रहा है, और एक बार ओल्ड वर्जन में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में न्यू वर्जन में कॉपी हो जाएगा। एक चेंज हमने किया है, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा है, कह रहा हूँ फिर से, इनएक्टिव के लिए हमने लॉजिक चेंज किया है। पहले इनएक्टिव के लिए फॉलो अप 2 लेवल्स था, अभी एक ओनली 1 लेवल कर दिया है, दैट इज 1 चेंज। और इनएक्टिव का हमारे पास फिल्टर भी आ जाएगा, जहाँ पे प्रीवियस अकरेंस जस्टिफाइड है कि नहीं है वो ओल्ड रिपोर्ट में हमको देखना पड़ता था। नाउ वो फिल्टर होके आ जाएगा कि भाई प्रीवियस अकरेंस जस्टिफाई होगा तो ही इनएक्टिव फिल्टर में आएगा। दिस इज द 2 changes is done in these 2 days. Not changes, it is improved. राइट। हमको it will be useful, but 1-2 दिन हमको थोड़ा मैनेज करना होगा। स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट फॉलो हो रहा है, कोई ये जो अकरेंस है ये सब कोई रॉन्ग नहीं होंगे, बट ये इनएक्टिव वाला अकरेंस जो है वो चेंज होगा। हाँ बोलो, कौन सी स्क्रिप्ट में हो? हाँ सर एचडीएफसी लाइफ में होना एक बार, क्योंकि मैं जब तक भाव नहीं देखता हूँ तब तक मुझे कुछ बोलना ही नहीं समझ में आता है। राइट। बोलो बोलो। सर सॉरी सर एचडीएफसी में हूँ, नॉट एचडीएफसी लाइफ। यस सर। सो सर दिस वाज जीएस इनएक्टिव, डार्क रेड था, वो मेरे माइंड में था। ओके, नाउ टुडे की लो से घुमा है सर, ये की लो इज, इफ यू गो टू सी, $15.69 परफेक्ट, और यहाँ से घुमा है, राइट? तो अगर आप आज का प्लान खोलेंगे, जो कीलो से घूमता है सर, वो दिमाग में एट द बैक ऑफ द हेड है कि मास्टर हाई तक इसका या रीसेंट हाई तक तो इसका जर्नी है ही है, बट जस्ट बिकॉज इट डिड नॉट give me a support in ICRC, like it did not give me a fresh support in ICRC, और BDP से क्रॉस होके बंद नहीं हुआ, I couldn't hold on to this trade. So is it right or wrong? एक बात बोलो निश्चित, बहुत सेफ ट्रेड करना हो ना, इजी ट्रेड करना हो ना, तो गुड वो सीरीज जस्टिफाई हुआ, पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय पीसीएस तक आके फिर पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करता है, बाय करो। रीएक्टिव हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करता है, बाय करो। इनएक्टिव हुआ, ये भी इनएक्टिव होके जब भी पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करता है, रिएक्टिव होने के पहले ही उसको बाय कर लो। ये एक्चुअली जैसे बैंक निफ्टी में हमने बात किया, एचडीएफसी में बात किया, तो की लो ट्रेडेड मींस ट्रेड तो कर ही लिया ना। नाउ एनी राइजिंग प्राइस अप टू मास्टर हाई इज ए पुल बैक ओनली, और जरूरी नहीं है मास्टर हाई आवे,
कहीं से भी एक बार स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर अगर वो टूट गया तो 1 किलो तो टूटा हुआ ही है, इसके भी नीचे जाएगा। ओके सर, किलो कैसे टूटा है सर इसका? आप बोल रहे हो किलो ट्रेड किया है, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं 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 1569 सर, अच्छा, किलो नहीं ट्रेड किया है, 1569 ट्रेड नहीं किया किलो है, नहीं वहां तक ट्रेड आया। ओके, किलो अगर जैसे बैंक निफ्टी में किलो ट्रेड किया है तो ट्रेड किया है। एनी स्टॉप एंड यूज टू बाय राइट फ्रॉम हियर एंड एनी राइज इन प्राइस अप टू मास्टर हाई इज नथिंग बट ए पुल बैक अपॉर्चुनिटी। राइट वो ट्रेडिंग के लिए बाइंग है, लेकिन पोजिशनल राइट ट्रेडर्स के लिए, पैसिव ट्रेडर्स के लिए, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए वो सब पुल बैक ही है। देयर इज नो बाइंग इन राइट बैंक निफ्टी एज सच। हाँ ठीक है, ट्रेडर के हिसाब से वो मास्टर हाई जो 21,000 चिल्लर है, लेट मी, ध्यान आया तो फिर से मैं उसको हाईलाइट कर दूं। बट इट इज नॉट अप्लीकेबल इन एचडीएफसी क्योंकि किलो उसने ट्रेड नहीं किया है। यहाँ पे किलो क्या था, 19,051, 19,051 11 मई को नहीं ट्रेड किया। ट्रेड किया है, और आज 19,051 का नेक्स्ट लेवल 18,557 ट्रेड कर लिया ना, प्रेस रजिस्ट्रेशन दे दिया। राइट किलो इज ट्रेडेड, ट्रेडेड मीन्स ट्रेडेड। ठीक है, नाउ यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है तो जर्नी इज टुवर्ड्स मास्टर हाई, नॉट मास्टर हाई। कहीं से भी वो रिवर्स भी राइट हो सकता है कल बीडीपी तक ही आवे, हो सकता है पोस्ट क्लोजिंग टाइमिंग बाई ट्रेड करे। सबसे पहले तो पोस्ट क्लोजिंग टाइमिंग बाई ट्रेड करेगा तो उसके लिए मास्टर हाई की जगह बनेगी 21,122, और 21,122 ट्रेड किया तो 21,967 की जगह बनेगी। एंड एनी रिवर्सल फ्रॉम पीसीसीपी 19,586 और 19,708 और एनी रिवर्सल फ्रॉम 21,122, तो ये जितना बढ़ेगा उसका डबल टूटेगा। वी डोंट नो कितना बढ़ेगा। यहाँ से भी रिवर्स होगा, समझ लो कि 2,000 पॉइंट बढ़ा है तो 2,000 पॉइंट टूट जाएगा, 1,500 पॉइंट बढ़ेगा तो 3,000 पॉइंट टूट जाएगा। हाँ, ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ट्रेडिंग के लिए बाई है, बट देर इज नो परफेक्ट बाई। इस तरह के मुझे ट्रेड सजेस्ट नहीं करने हैं जो एकदम इजी सिंपल, वही करना चाहिए बस। तो वापस हम एचडीएफसी में आते हैं। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा है, इसके लिए हम बात कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं क्योंकि वो ट्रेड करते हैं सब लोग। बट इफ एनी अदर स्क्रिप्ट इज देयर आई विल नॉट एनकरेज टू बाई कि भाई किलो ट्रेड कर लिया, स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं सर, हुआ। इसमें किलो ट्रेड नहीं किया सर, मैं किलो ट्रेड करता हूँ तो नहीं करता हूँ। क्लेरिफाइंग, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट राइट क्लेरिफाइंग फॉर एवरीवन, डोंट राइट टेक इट पर्सनली। तो यहाँ पे किलो ट्रेड नहीं किया और किलो तक आकर यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ है, तो दिस इज अ वेरी गुड बाई। यस सर बट आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू इट, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट शुड आई हैव लाइक इसको होल्ड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था आज के ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से। मैं क्लोजिंग पे निकल गया बिकॉज उसने बीडीपी ट्रेड नहीं किया इन द डेली प्लान, एंड आई क्लोजिंग पे स्क्वायर ऑफ करते वक्त मैंने ये सोचा था कि कल अगर अपर बैंड ट्रेड कर लेगा तो आई विल बाय। ऐसा कुछ कल अपर बैंड ट्रेड नहीं करेगा, और कल कर भी लेना तो बाइंग नहीं करना। 3+1 का प्लान है, राइट जेजेडी फॉलिंग चैनल में है, राइट आएगा एक बार नीचे वापस। हाँ बस जो चूक मुझे गया भी वही उसके लग रहा पीछे था मत सर। पड़ो, जो चूक गया ना उसके राइट पीछे नहीं जाना कभी भी। अभी नहीं कमलेश सर, भाई ने चूक बोला नहीं किया वो तो। चूक गए तो एक बार तो वापस आएगा वो। राइट नहीं सर, ठीक है ना। सोच समझ के छोड़ा था सर, तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर डेली में स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो और बीडीपी नहीं ट्रेड करे तो वी एग्जिट ओनली ना एट द क्लोज, चाहे कोई भी सिनारियो हो। अगर ये बाइंग का घर है ना, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाइंग एस्टेब्लिश हुआ है। हम वो बाइंग होल्ड करने के लिए कहते हैं जिसका प्रीवियस पीरियड है ना डार्क ग्रीन हो, तो सेफ है। तो आप निकल गए, वो सही किया, अच्छा किया। प्रीवियस पीरियड डार्क ग्रीन रहता तो होल्ड करना था, बट प्रीवियस पीरियड इज नॉट डार्क ग्रीन। राइट अभी सर एक और छोटी क्वेरी है लाइक दिस। ओके, कोलपैल खोलेंगे सर?
सर दिस ऑल्सो इफ यू थोड़ा ऊपर जाएंगे, दिस इज रिएक्टिव जीएस, ये रिएक्टिव में चल रहा है एंड डबल एक डार्क मिनट, ग्रीन स्टार है। रिएक्टिव होकर फॉलो बाइंग नहीं आई ना, ये अभी हमने बात किया। पीसीएस नहीं तक आई है सर। रिट्रेस हुआ, पीसीएस तक रिट्रेस हुआ तो देयर इज टू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। एक पीसीएस तक रिट्रेस हुआ तो हमेशा पीसीएस के पास ले लो, इरेस्पेक्टिव स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो 10 ट्रेड तो करते ही रहो, राइट अदरवाइज पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करे तो ही बाई करो, तो वहां से तो 5% देगा। लेकिन ये 1549 उसने ट्रेड ही नहीं किया ना, नहीं किया सर। तो फिर वो रिएक्टिव होकर फॉलो बाइंग नहीं आई और उल्टा उसने पीसीएस या पीसीडीएस लोअर से ट्रेड कर लिया आने वाले राइट दिन, जो भी हमने बात की, तो ट्रेड खत्म हो गया। राइट ओके सर, अभी इसमें मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, कि जब तक ये किलो के ऊपर है तब तक ये बाइंग के घर में ही रहेगा, चाहे बीच में कितने भी स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल बाय ये ट्रेंडिंग लेग के हिसाब से जितना भी डार्क ग्रीन रेड डार्क रेड होए, बट एक टिल बार किलो इज इंटैक्ट। गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाई होकर, कल भी आपने वेबिनार अटेंड किया, फिर एक बात चूक गया, मैंने रोहित को बोला था कि आपको अपडेट हाँ करेंगे। सर, वो मेरी उनसे बात हो गई थी सर। बाइंग आने के बाद में फॉलो बाइंग आई तो किलो नो विल एक्ट एज मेजर सपोर्ट जब भी किलो के पास आएगा। ओके ओके समझ गया सर। फॉलो बाइंग आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। फॉलो बाइंग आ गई ना, उसके बाद में अगर रिट्रेस होके फॉलो बाइंग आई है तो बेस्ट बाई है, हाथों हाथ ले लो। रिट्रेस हुए बगैर अगर फॉलो बाइंग आई है तो एक बार वापस रिट्रेस होगा फिर लेना, लेकिन जिस दिन फॉलो बाइंग आती है उस दिन लेके छोड़ दो उसी दिन। रिट्रेस होकर फॉलो बाइंग आती है तो 5% मिलता है। रिट्रेस अगर आपने बाइंग कर लिया और वो रिट्रेसमेंट में पीसीएस ट्रेड नहीं किया है तो 8% मिलता है, 8%। राइट सर, अभी इसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सर 21 अप्रैल को मैंने इसमें बाइंग की थी क्योंकि जीएस जस्टिफाइड होके ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ था, सो आई इजीली गॉट मोर देन 5% इन दिस ट्रेड टू बी रियली ऑनेस्ट, राइट। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये रिट्रेस होके अगर जस्टिफाइड हो गया एंड उसके बाद जो किलो है वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था टू, बराबर, यहाँ से 1420 भी ट्रेड कर लिया ना आगे, राइट इसलिए गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई किया हुआ, एस्टैब्लिश हो गया। एग्जैक्टली और ये टूट मेरे लिए बाइंग का के स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, फॉलो बाइंग आई, तो इसका जो किलो है 1080 है शायद, राइट 1065 सर। 1065, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया और मेरे ख्याल से ये अपने बाइंग लिस्ट में भी है, जो स्पेशल होलपाल है ना सिनेरियो। सर, है हाँ, है 1080 लिखा हुआ है, तो ठीक है 1065 कर लेना। हाँ। तो सर लेकिन यहाँ पर आज नहीं, आज बाइंग नहीं है इसमें। 505% मिलना था, 5% मिल गया, खत्म हो गया। उसके बाद में पीसीडीएस सब ट्रेड करके चल रहा है। राइट ओके। तो सर आज का जो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ उसमें यू शुडंट हैव गिवन, लाइक आई शुडंट हैव गिवन दैट इंपॉर्टेंस टू इट के मास्टर हाई के भी नीचे आ गया और किलो के ऊपर स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया, तो आई शुडंट गिव दैट इंपॉर्टेंस टू इट। ये डार्क ग्रीन में सर, लेट इट दो अप्रोच वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुए तो इट मैटर्स, राइट, क्योंकि यहाँ पे सर मास्टर हाई के नीचे स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय भी चलता रहता ना तो भी कुड हैव मैनेज्ड। ये यहाँ पे पीसीडीएस तो भाई ट्रेड कर लिया ना, और 1380 तक भी चला गया ना, तो 1380 तक आके 1380 इट इज नॉट एबल टू ट्रेड ऑन हायर साइड और वहां से रिवर्स हो रहा है, तो इसको तो ये 1362 के स्टॉप लॉस से बेच देना चाहिए, 1380 के स्टॉप लॉस से बेच देना चाहिए कल बढ़ता है तो। लेकिन ऐसा से इतना सारा थॉट प्रोसेस नहीं लगाना चाहिए निखिल, मुझे यार डर लगता है यार, एवरीवन इज नॉट एबल टू फॉलो ऑल दिस, मुझे वापस वहां लेके मत। आई वांट टू कीप इट सिंपल। गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाई हुआ,
और पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करता है, बाय करो। रिएक्टिव हुआ, पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करता है, बाय करो 5%। और अभी रिपोर्ट भी नया बन जाएगा जिसमें इनएक्टिव भी हमने सीखा हुआ ही है, लेकिन वो इनएक्टिव में जाके प्रीवियस अकरेंस जस्टिफाइड है कि नहीं है वो चेक करना पड़ता था, अब वो चेक नहीं करना पड़ेगा। तो इनएक्टिव भी आके जैसे जस्टिफाइड, जैसे वो पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करे, बाय करो 5% रखो बस है। बहुत अंदर 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 जाते हैं ना, तो मुझे एक ऐसा काम करना पड़ेगा कि भाई महीने में 1 वेबिनार 2 वेबिनार ऐसे रखने होंगे कि जहाँ पे लोग थोड़ा डीपली सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल वेबिनार रख लेंगे। और उसके लिए बुला भी लूंगा मैं कि भाई चलो उनको एक ग्रुप बना लेंगे अलग से, फिर उनको ही वेबिनार लिंक भेजिएगा, सो दैट आई कैन जस्टिफाई एवरीवन। बट इस तरह से इतना डीप में डिस्कस करते हैं ना बेचारे जो लोग, कुछ लोग खो जाते हैं, निश्चित Right, sir. I understand. कुछ लोग खो ठीक है जाते सर. हैं। Got it, sir. इतना मत, बहुत Yes. सिंपल है। यहाँ पे जस्टिफाई हुआ, 1420 ट्रेड किया, 5% मिला, खत्म हो गया हाँ सर. बस। आप देखो ना, जहाँ भी मैं किसी को सोचने की बात बोलता हूँ ना, कहाँ सोच पाते हैं, कहाँ बोल पाते हैं, कह ही नहीं पाते हैं। तो जितना कर सकते हैं उतना ही सिखाना चाहिए, कितना भी बढ़िया सिस्टम हो, 50% क्यों नहीं देता हो, लेकिन आप सीख सकते हो तो अच्छी चीज है। आप नहीं सीख सकते हो तो 50% वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी गलत है। Right, sir. ठीक है सर. बराबर। मैं हमेशा कहता हूँ શીખવા માટે સમય અને ધગસ બંને જોઈએ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिफरेंट थिंग, ऑल टुगेदर इज सेकंड थिंग। पहले हाँ ऋषभ बोलो। So, good evening. So, can you tell me PFC? So, your week below series justified happened with the stop and reverse to sell. And so, if you see the recent low is 85. एक तो So, can you स्टॉक एंड spot? लोकल 83.25 PCDS is on lower side. Yeah. Yes, traded on lower side and close with PCR. ये PFC भी कभी बढ़े तो सेलिंग ही है। कहाँ से टूटा? 83.25 से टूटा, तो ये 87.30 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। Resistance ठीक बन गया, yeah. So, my doubt is, can you scroll up? So, यहाँ पे एक recent low भी था 85.20 का, 30, which is traded on the lower side when SNR sell happened. Week below series justified का 84.70 should trade on lower side. 84.70 is also traded today on lower side. ठीक है। और सर और जिस दिन SNR सेल हुआ उस दिन वो ट्रेड किया था, फिर सर 11th को हु ट्रिगर्ड द फॉल्स 84.70 तक ही वो आया, और फिर आज सर वो SNR सेल इन एक्शन भी आ गया। So sir, I have sold it and I have hold the position. सर मैंने होल्ड इसीलिए किया है क्योंकि आज वो WDP ट्रेड होके लोअर बैंड ट्रेड होके क्लोज हुआ है। तो सर ये होल्ड करके आना चाहिए था कि नहीं? वाज माय होल्ड वैलिड? कोई बात नहीं, मत घबराओ। SGX निफ्टी भले बढ़ा हो, ये नहीं तो आई डोंट केयर अगर SGX 500 हुआ तो बिका, सिस्टम में सेलिंग आई है तो आई है बस। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट दिस वर्ड्स। PFC से और निफ्टी से लेना देना ही नहीं है सर। वीकली वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होके PCDS ट्रेड किया है, यहाँ से 5% देगा। हाँ सर, और ऊपर आप स्क्रॉल करोगे तो एक 78 का सर, जो मतलब 5% का टारगेट है, वो एक और तुमसे मैंने बहुत बार कहा एक बात, निफ्टी की बात नहीं करते। जब भी सेलिंग आती है ना पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव ट्रेडिंग में, जब भी बाइंग आती है ना, बाइंग करके पोजीशन उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर दो। जब भी सेलिंग आती है ना, उसी दिन सेलिंग करके पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो। एक बार तो है ना, नेक्स्ट डे वो रिट्रेस होता है। सर वो हो गया ना सर। सर 8 को उसने रिसेंटली जस्टिफाई होके आज ही PCDS फर्स्ट टाइम ट्रेड किया है। सर मैं उसको देख रहा था सर, 8 को उसने रीसेंट लो ट्रेड करके 11th को वो फिर से रिट्रेस हो गया, ICR से खुल के वो ट्रिगर्ड द फॉल, तो सर वहां तक ही वो आया। तो आई वाज लाइक वो कितनी बार रिट्रेस होगा? ये 12 मार्च से सेलिंग में है। वैसे देखा जाए तो बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई हुआ, ये 80.55 ट्रेड करता तो और तोड़ता, बराबर है।
या 80.55 क्या ट्रेड किया है ये देख लेना, मेरे ख्याल से नहीं किया होगा। नहीं सर, नहीं किया। ये 80.55 यहाँ पे 23 मार्च को नहीं किया है। नहीं किया। So next new round of selling will begin. Very big selling will begin when 80.55 trades on lower side. तो वो ध्यान में रख के है, तुम इतना डीप में जाते हो इसके लिए कहता हूँ। और मैंने बहुत बार हमेशा कहा है कि जर्नी कहाँ से चालू हुई, यहाँ से शुरू राइट। हुई। तो यहाँ से शुरू 80.55 ट्रेड करेगा लोअर साइड, कोई न्यू राउंड ऑफ सेलिंग में begin. टूटेगा, नथिंग टू वरी। 70-80 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो नया टूटेगा, तो यहाँ से और 5% और देगा वो। राइट। बोलो 76-80 तक ही आया, और वहां से इस दिन का जो 96.55 था किलो सीरीज, इसीलिए ट्रेड नहीं किया तो क्या होगा, पीसीआर तक आएगा। तो ये पीसीआर तक आ रहा है 96.55, यहाँ तक पीसीआर तक आ रहा है 96.55, पीसीआर तक आ रहा है 96.55, पीसीआर तक आ रहा है 96.55, पीसीआर तक आ रहा है। और 4 बार पीसीआर तक आके इसको ये वहां से पीसीआर ट्रेड नहीं कर रहा है, तो ये पीसीडीएस और ये 76-80 कर लेगा, ऐसा समझो। तो इतना मैंने ये पीसीआर इतना आएगा वो स्टडी नहीं किया था, लेकिन हाँ मैं ये देखा था कि रीसेंट लो इज एक रीसेंट लो तोड़ता है, इतना दूसरे सब रीसेंट लो की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 12 मार्च से नॉन स्टॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। एक बार 80 ठीक, कोई बात नहीं, सेलिंग है तो है, आप सेलिंग में रहो। और कल अगर 83-95 ट्रेड भी कर लेना, जो नहीं करेगा अगर कर भी ले तो भी एक बार भले स्क्वायर ऑफ कर लो। ये 100% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 84-90। यस और सर। वापस जब भी रेजिस्टेंस से ट्रेड करे फिर बेचना, छोड़ना ही नहीं इसको। हाँ नेवर, पीसीटीएस एक ट्रेड करेगा फिर से बेच के होल्ड। ठीक है ना सर? सो माय नेक्स्ट डाउट सर, एक एलएनटी लोगे सर? एलएनटी 97 की छोटी पकड़ के रखनी चाहिए थी इसकी। सेलिंग की कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं, हालांकि बाइंग का लिस्ट दिया है वो देखना है। हाँ यस सर। सो यहाँ पे वीक लो सीरीज जस्टिफाई हुआ था और एसना सेल हुआ था। तो सर 11th को इट ओपन आईसीआरसी। सर क्या उसको हम रिट्रेसमेंट समझ सकते हैं? मतलब जस्ट ओपनिंग आईसीआरसी, पीसीआर इज 840 डॉट टू डॉट नहीं समझे, खाली आईसीआरसी ओपन होना। इसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा यार। आईसीआरसी खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस मिल के अगर जर्नी कंप्लीट की हो ना, तो हम कहेंगे कि रिट्रेसमेंट हुआ और टूटा। बट जर्नी कंप्लीट नहीं की ना। ठीक है, तो सर आज का प्लान आप खोलेंगे तो ये जो पीसीडीएस है 810.65, तो यार लो पकड़ेंगे 810। तो सर उसका नेक्स्ट लेवल है 805.95। मूवमेंट बिगड़ गया क्या इसका, कि हाई लो क्लोज वापस अपलोड हो रहे होंगे? होते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? एलएनटी में 810, हाँ तो सर 810, आज 55, आज 80930 लोअर से ट्रेड किया है और स्टॉप बाय हो गया। ठीक है। हाँ हाँ तो अपन सर, लेकिन ये इन एक्शन तो आया है और ट्रेड हुआ है, लेकिन सर अगर वो कल लाइक हु ट्रिगर्ड द फॉल, तो 810 ट्रिगर्ड द फॉल। अगर वो कल बढ़े भी, ऊपर भी आए, तो 821 सर आज का जो पीसीसी भी है उसके स्टॉप लॉस से बेच सकते हो कि 810 जो हु ट्रिगर्ड द फॉल उसके स्टॉप लॉस? पकड़ा, इस घर से पकड़ा 8 मई के घर से, यस सर। 840 को पकड़ के रखो। सर लेकिन वो ट्रिगर्ड द फॉल में जैसे 810 आएगा तो ओके। वो ट्रिगर तो फॉल कब बोल सकते हैं, जब वो पीसीआर से बंद हुआ हो। बंद, हाँ राइट सॉरी। अगर पीसीडीएस इस दिन का पकड़ते हो
तो इसी दिन का पीसीआर पकड़ो ना, ये 840। हाँ, आज रेजिस्टेंस से बंद होता तो ट्रिपल द फॉल, राइट राइट। तो यहाँ से जो 840 भी रिट्रेस होता है होने दो, वापस जहाँ से घूमे 840 के नीचे है तब तक फिर से सेलिंग कर लेना। 799 30 ट्रेड करेगा तो और टूटेगा। yeah, okay. Sir, I have a couple of doubts, but sir, I'll ask tomorrow to it's being late. श्रीधर बोलो। સર ઇન્ડિયા બુલ્સમાં એક ક્વેરી છે, આપણે સેલિંગ લિસ્ટમાં હતી અને હમણાં બાઇંગ લિસ્ટમાં પણ આવી છે. इंडिया बुल्स 133 થી આપણે સેલ કરવાનું હતું સર, અને 108 નો ટાર્ગેટ હતો આપણો, એટલે 108 સુધી સેલિંગમાં રહેવાનું હતું. टारगेट था, बराबर है। ઓકે, તો આજે 112 આવી ગયું સર, અને એસએનઆર થયું છે. તો હવે આપણો જે બાઇંગ નો વ્યૂ છે એ કન્ફર્મ થયો અહીંયા? બાઇંગ ના વ્યૂ નું ઇન્ડિકેશન મળ્યું, ઇન્ડિકેશન મળ્યું. ઓકે, તો બાઇંગ હવે આજે આજનો જે આપણો પીસીસીબી જે છે એ ટ્રેડ થાય તો वी कैन बाय दैट ना? वही लिखा हुआ इनिशिएट whenever PCR or PCCB trades on higher trade along with PDP continue to hold for 5% plus gain when closes with PCS. We can prefer to hold with stop loss of PCS or PCDS projecting to trade above the recent high. मतलब 5% मिलने के बाद में भी हम PCS के, जब तक वो PCS के ऊपर है तब तक हम क्या करेंगे, बाइंग का या तो होल्ड करेंगे, बाइंग करते रहेंगे 133 तक. हाँ बराबर है सर. और 135 अगर क्लाइंबिंग बाय ट्रेड होता है तो अनदर 5%. होने दो ना, देखेंगे. ओके सर. અને એક બીજું પૂછ્યું હતું સર, ઇન્ડિગોમાં જરા જુઓ ને સર. ये सब है ना, बहुत सारी स्क्रिप्ट कल 3+1 जीजीडी फॉलोइंग चैनल में है भैया, इसलिए नाचना नहीं। यहाँ से वो भी बढ़ता है, बढ़ने दो, ब्रेक स्टॉप एंड सेल हुआ तो जीजीडी आ जाएगा। एक बार जिसके भी हाथ में बाइंग की पोजीशन हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना। केडिला में भी सर सिप्ला जैसा ही है, सेम। अच्छा, क्या अभी कहाँ जाऊँ मैं, कौन सी स्क्रिप्ट में? इंडिगो। सेलिंग के घर में है सर। कैसे? शुरुआत से 1037 तक, जब तक वो उसके ऊपर ट्रेड नहीं होता है तब तक अभी का। ऐसे तो बहुत पहले से है। 31 जनवरी से बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई हुई है, यहाँ पे भी लाइट ग्रीन था, बहुत पहले से, बहुत पहले से। तो अब तो इसमें परसों के दिन 2 दिन से एसएनआर टू सेल हो गए ना। 1 मिनट, परम दिवस कालना प्लान में आओ ना सर। ऐसा नहीं है, ये बिग ब्लू सीरीज इनएक्टिव है। और रीएक्टिव कब होगा, जब उसका मास्टर लो 915 लोड से ट्रेड करेगा। 915 ट्रेड ही नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, रीएक्टिव नहीं हुआ, उल्टा मास्टर लोअर से ट्रेड नहीं करके वो मास्टर लो तक आकर यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। मतलब उसको एक बार पुल बैक की बोलो भले। यस सर। हाँ यस सर, नो? यस सर, यस सर। तो फिर वैसे देखो ना, और ये भी चलो ठीक है, ये की इसका की है नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं था, बट यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग ही नहीं है। यानी 908 के है ही नहीं वो, बराबर है सर। लेकिन एक इसमें अभी समझो सेल देखना है तो कैसे करना है, समझो 1020 के अभी जो कल का जो प्लान था ना सर, 1031 261.8% था,
तो वो 1031 के नीचे जब तक है वो तब तक सेल कर सकते हैं ना? हाँ, तभी हुआ था। पीसीडीएस या कुछ तो ट्रेड करे, ये यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, तो इसका पीसीडीएस लोग कुछ तो ट्रेड करे तो ही सेल आएगा ना। सर ठीक है सर। इसमें बाइंग है यार इंडिगो में। ओह ओके। क्यों देखती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जस्ट 1031 को एक रिस्पेक्ट है ना, ये 1020 आज दिख रहा था ना, इसके लिए मैं स्टॉप एंड यूज टू सेल है तो करेक्शन सेल ही है ना। या दैट इज ट्रू, करेक्शन सेल ही है। और यहाँ से Okay, sir. 1032 ट्रेड करेगा तो रिवर्सल बाय हो जाएगा, रिवर्सल बाय होके बहुत मस्त तो और बढ़ जाएगा। 1038 बहुत मस्त। 32 ट्रेड sir, कर yes. तो बाइंग की सोचो, Yes, 1038 sir. ट्रेड 5% की सोचो। मारे सेल करके थोड़ा सेल हाउस है। ठीक है सर। तो खाली वो 1020 1031 देख रहा था, इसके लिए थोड़ा सा वो एक कंफ्यूजन था। इट्स ओके। કોન્સેપ્ટ देखो, કોન્સેપ્ટ સર એક પૂછવું હતું, હવે આઈબુલમાં આપણે સેલિંગમાં હતા અને તમે બાઇંગ સેલિંગમાંથી બાઇંગમાં એક કેવી રીતના એ જસ્ટ એક કરી શકશો સર? પછી ક્યારેક લેશું હે? ઓકે સર, કારણ કે જનરલી શું છે આપણું તો ઓલું જ હતું ને કે 108 પણ એ ટ્રેડ કરી જશે એવી રીતનું આપણું માનવું હતું જે સેલિંગ સ્ક્રિપ્ટ છે। ठीक है, मार्केट न्यूज़ टू बाय हो गया ना, इसलिए बाइंग आ गई। ओके सर। ट्रेडिंग में तो एक बार सपोर्ट तक आके व्यू चाहिए होता है ना, 108 तक आना था आज। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। नो मोर क्वेरीज हो गया। आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली शुरू में बोलना चाहिए था निफ्टी के बारे में, लेकिन गजानन सर बोलिए। Yeah. Good evening, sir. गुड इवनिंग। I have a query in Berger Paint daily as per RAR. It was GS inactive, and before that GS justified, and its kilo is 442.35. And today it came up to kilo, and it became stop and reverse to buy. And I bought it with the support of stop and reverse to buy support, expecting that once it climbs the PCCB, the buying will come. But I tried to buy it near the support with the stop loss of PCS 439 today. So is it a correct concept कि किलो के पास stop and reverse to buy हुआ है तो जर्नी विल बी टुवर्ड मास्टर हाई, और अभी बाइंग का ही व्यू है क्योंकि किलो ट्रेड नहीं किया है। बट अभी थोड़े टाइम पहले आपने समझाया कि किलो ट्रेड हुआ है, उसके बाद में स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होता है, तो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करने के बाद ही बाय करना चाहिए कोलपाल में और HDFC में। तो मेरा ये व्यू गलत है फिर मैंने जो ट्रेड लिया है? एक बात, ये हम बहुत पहले सिखाते थे कि भाई गुडबो सीरीज अक्कड़ हो, जस्टिफाइड हो, इनएक्टिव हो, किलो तक है, किलो ट्रेड किया हुआ नहीं रहना चाहिए। किलो लोअर से ट्रेड किया हुआ नहीं रहना चाहिए। किलो तक आकर अगर वो स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो बाइंग करना चाहिए। बट ये बात तो ये कुछ लोग किलो ट्रेड कर लेता था तो भी बाई कर लेते थे, और किलो तक आता था तो भी बाई कर लेते थे। आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट किलो नॉट हैव ट्रेडेड ऑन लोअर साइड। तो हमने वो बात निकाल दी, छोड़ दो। हियर ट्रेड सही है कि किलो तक आया है, किलो कभी भी एक बार लोअर से ट्रेड नहीं किया है। करेक्ट। और ये बहुत अर्ली बाइंग है। इस तरह का ट्रेड सेटअप करते हो तो कम से कम 10 ट्रेड करना है ऐसा। करेक्ट। कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है तो चलेगा। अनदर ट्रेड यू शुड हैव करेक्ट। और 50% पोजीशन यहाँ पे लो, 50% पोजीशन पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करने पे लो। ट्रेड करने के बाद में, यस, दैट इज व्हाट आई हैव प्लान्ड। वंस इट क्लाइम्स PCCB, ये रिवर्सल बाय होगा। रिवर्सल बाय होगा वो, तो 5% मिलेगा। और मास्टर क्या है,
हाँ, मास्टर है इसका 503 था। हाँ तो फाइन और 3 के पास छोड़ देना उसको, बाद में क्या करता है देखिए। अच्छा, ओके, मास्टर आई तक का जर्नी के लिए। सो दैट ट्रेड वाज करेक्ट, मतलब ऐसा कुछ गलती नहीं किया है मैंने। गलती नहीं किया। इफ यू आर कंटिन्यूइंग Yes, कंसिस्टेंट, yes. I'll be doing this whenever it comes to kilo and stop and reverse to buy happens. Then with the support of the stop and reverse to buy as a stop loss, I'll be buying it and wait for climbing by to trade, or the stop loss will hit. Yeah, discipline of consistency alone is a key to success. key to success. Uh, Okay. because this is all accumulation only, no, coming up to kilo GS inactive होने के बाद में, so view is buying only. जैसे कल के वेबिनार में आपने समझाया था कि PCDS ट्रेड किया भी है तो भी unless the kilo is not traded, it is accumulation. बट आपको देखना पड़ेगा कि गुड अबो सीरीज जस्टिफाई होके हाँ इसका पीसीआर 535 हायर से ट्रेड किया है। हाँ किया है। हाँ, ये अभी आगे से देखूंगा मैं, एक बार फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। सेल हुआ, यहाँ पे स्टॉप एंड टू सेल हो गया है, मतलब ये नहीं किया है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन समझना हो तो कम से कम बुल अपनी जगह बना पाए कि नहीं पाए, बुल एस्टैब्लिश ये चेक करना पड़ेगा। और ये अभी आगे से चेक करूंगा, क्योंकि ये आज समझा है मुझे कि जीएस जस्टिफाई होने के बाद में एक बार तो पीसीसीबी ट्रेड करना चाहिए, सो दैट फॉलो अप बाइंग आई है, उसके बाद में रिट्रेस होता है तो चलेगा, बट वो एक बार तो उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि फॉलो अप बाइंग आई है। वो अभी आगे से चेक करूंगा जो इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो है ना, फॉलो अप बाइंग नहीं आई है। हाँ, नहीं आई है, करेक्ट। 530 यहाँ तक आया, ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे 536 ट्रेड किया भी होगा तो स्टॉप एंड टू सेल हो गया। 549 एटीपी हायर से ट्रेड नहीं किया, तो यहाँ पे जब फॉलो बाइंग नहीं आती है तब सुनना है। मैं वापस ये आई डोंट एनकरेज दिस, जो पकड़ सकते हो पकड़। गुड अबो सीरीज होकर फॉलो बाइंग नहीं आती है और उल्टा पीसी ये ट्रेड कर लेता है या स्टॉप एंड टू सेलिंग आ जाता है तो सीधा किलो का। ओके, जो आज हुआ है ये मयूर पटेल ने बात पकड़ ली तो उसको मिली थी। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके लिए जितने भी गुड अबो सीरीज जस्टिफाई हुए और उसी दिन स्टॉप एंड यूज फेल हो गया, फिर बाद में क्या हुआ, ये 20 25 50 स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आएगा। करेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। फॉलो अप बैंक नहीं आती है तो किलो आता है और क्या करेगा, किधर जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। Shall I go to the Nifty? All queries solved. કેમ છેલ્લે બધા આવો છો ધર્મેશભાઈ? people are not able to hold for 2 hours. સર સોરી, છેલ્લે નતો આવ્યો, પણ આ જે આપણે ઇન્ડિગોની વાત થઈ ને તો એમાં જરા થોડું ક્લેરિફિકેશન જોતું. સર ઇન્ડિગોમાં 5th મે નો જે સ્વપ્ન દિવસ બાય છે 929.10 એને ટ્રેડ કરી નાખ્યો છે, રાઈટ? એટલે આપણે 996.70 નો આપણે સ્ટોપ લોસ પકડીએ ફોર યોર સેલિંગ પોઝિશન. 929.10 is an to buy, right? એને ટ્રેડ કર્યો છે સર 7th મે. यार इस पीरियड का 5 मिनट का लोएस्ट लो 908 रुपया है ना, ये पकड़ो ना। ओके, ठीक है, डन सर, डन। Anyone else? भावना बाय डिफॉल्ट हैंड रेज है क्या है? देखो मैं भी निफ्टी है ना आपके साथ ही समझ रहा हूँ।
अकॉर्डिंग टू RAR हमने बात की थी कि ये गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होके इसका किलो 8055 है एंड ये जस्टिफाई होकर 9393 स्टॉप एंड यूज सेल हुआ था और वहां से उसने ये PCDS 8841 लोअर साइड कभी ट्रेड नहीं किया और इंस्टेड 9393 तक आया था, 9393 भी ट्रेड नहीं कर पाया। देन 9456 इसका फॉलो बाइंग लेवल हो गया, तो 9393 ट्रेड नहीं किया, 9456 ट्रेड नहीं किया, ना ही 8841 कभी उसने लोअर साइड ट्रेड किया। फिर 9456 जो है वो उसने ट्रेड नहीं किया, फॉलो बाइंग नहीं आई। 9465 भी हायर से ट्रेड नहीं किया, फॉलो बाइंग नहीं आई। और ये सब कुछ उसने 9465 ये सब फॉलो बाइंग जो है उसने शायद 29/4 को या 30/4 को तो दे दिया। और यहाँ पे गुड अबव सीरीज जो है जस्टिफाई जो है वो एस्टेब्लिश हुई। तो 8841 जो है निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू RAR, अकॉर्डिंग टू पोजिशनल ट्रेडिंग, अकॉर्डिंग टू द पैसिव ट्रेडिंग, अकॉर्डिंग टू द मेजर व्यू। इस तरह से मैं इसको रीड करता हूँ। और फिर यहाँ पे गुड अबव सीरीज फिर से जस्टिफाई हुई और इसका एक और नया किलो अपने को मिला 8909, जो 8841 8909 एक ही बात हुई। और गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होके फिर इसका जो पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाई था ये इसने हायर से ट्रेड नहीं किया, मतलब फॉलो अप बाइंग नहीं आई, तो उसको एक बार किलो जो है 8909 तक आने की उसने जगह बना ली। एंड अकॉर्डिंगली वो 8909 नहीं तो कम से कम 9116 और 9043 8909 के पास आ ही गया। अब यहाँ तक आने के बाद स्टिल इसमें गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होके बाइंग एस्टेब्लिश तब होगी जब 9968 हायर से ट्रेड करेगा। तो यहाँ से कोई भी जर्नी है अगर बाइंग आती है तो ये 9407 इसको हायर से ट्रेड करके सपोर्ट से बंद होना इनएक्टिव हुआ है, इसका मतलब ये 9407 हायर से ट्रेड किया, फिर रिएक्टिव हो जाएगा, फिर उसको 9529 9540 ये भी इसको ट्रेड करना होगा। तो इसके लिए रास्ता बन जाएगा 9968 तक का। और 9968 अगर हायर से ट्रेड करता है तो हम उस समय देखेंगे कि हाउ इट इज बिहेविंग, उस समय बात करेंगे उसकी। देन ओनली न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन। हम बीच में भी बात कर रहे थे कि ये 9280 के ऊपर बंद होता है इस दिन 8 मई को, तो 9968 की जर्नी है। तो अकॉर्डिंगली गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड है, इसके लिए हमने बाइंग की बात की थी। फिर एक और कॉन्सेप्ट है अपना वेब जस्टिफिकेशन, तो अकॉर्डिंगली भी 8909 का ही सपोर्ट आ रहा था और हमने बाइंग की बात की थी। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है मास्टर सपोर्ट जस्टिफिकेशन, और अकॉर्डिंगली उसका कुछ 9142 सपोर्ट आ रहा था। और एक और कॉन्सेप्ट अपना जो है स्टॉप एंड टू बाई सेल इन एक्शन का एक और हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एडवांस में उसको लेके गए हैं, तो जिसको हम 7th लेवल कहते हैं। अकॉर्डिंगली वहाँ पर भी 9142 का सपोर्ट था। एंड आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू टीच दिस और नॉट, कैसे सिखा पाऊंगा मुझे नहीं मालूम है, जैसा अच्छा चलता है वैसे चलने दो। बट यहाँ पे ये रिवर्सल बाय हुआ था, तो ये 9142 का सपोर्ट है। 9968 ट्रेड कर लेगा ऐसा समझ में आ रहा है, और ये कर लेता है तो सीधा जो उस दिन बोलते बोलते बोल दिया था मैंने कि भाई यहाँ से 8900 ट्रेड नहीं करता तो 12,000 आएगा। फिर लाइव मार्केट में हमने बात की थी, तो फिर मैसेज भी आ गया कि भाई सर लाइव मार्केट में से सब मत बोला करो, सेलिंग की पोजीशन फट जाती है। लेकिन यहाँ से फर्स्ट जर्नी 9968 रखते हैं,
एंड हाउ इट बिहेव्स अगर 9968 तक आके फिर थोड़ा टूटेगा, फिर धीरे धीरे मुझे तो ये सब लेवल्स दिख रहे हैं, बट लेट अस सी हाउ इट इज बिहेविंग। इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि बाजार बाइंग में हो और बाइंग आती हो ना, तो वो रियली सस्टेन भी होती है और इजीली सब लेवल्स जो है वो क्रॉस कर लेती है। लेकिन इस तरह से गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होके बाइंग एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, इसके लिए इतना इजीली सब जर्नी क्रॉस करना इजी नहीं होगा, इसीलिए ये टूट टूट के बढ़ा, बाइंग एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, इसके लिए इतना टूटा, वापस वहां तक रिट्रेस हुआ एंड फाइनली वी आर ब्लेस्ड कि हम हमारा व्यू चेंज नहीं किए। और कल भी यू बोल दिया कि भाई बाइंग का व्यू है तो सिर्फ बाइंग की बात करेंगे। हाँ ठीक है, इंट्राडे में सेलिंग आती थी, ये करते थे वो करते थे, सब कुछ ठीक है। तो इंट्राडे की ट्रेडिंग के व्यू रोज 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 नहीं करा सकते हैं, वो सीख के समझ के खुद को ही करना होगा। बट व्यू बेस्ड ट्रेडिंग जो है, बाइंग का जजमेंट जो है, अकॉर्डिंग अपने पास 5 कॉन्सेप्ट ऐसे थे पैसिव ट्रेडिंग के, पोजिशनल ट्रेडिंग के, जिसमें हर तरह से 8909 और 8914 के ऊपर बाइंग थी। एंड वी आर ब्लेस्ड कि भाई बाइंग है। अब 8996 जो है इसके ऊपर भी बाइंग है। और यहाँ से यस आई वांट टू हाईलाइट दिस, ये 962 यहाँ पे 9968 और ये 9034 लोअर से ट्रेड नहीं किया था और 9625 भी हायर से ट्रेड नहीं किया था, लेकिन ये 9232 ये 9183 ये सब आज लोअर से ट्रेड किया है। तो ये इसको एक बार तो 9625 पे रुकेगा, इतना इजी नहीं है। और कल का प्लान क्या बोल रहा है, ये देखो 3+1 जेजीडी है, तो जिनके हाथ में बाइंग की पोजीशन है उसको समझ के अगर ये 9540 9540 9529 के पास हाउ इट इज बिहेविंग ये देखना पड़ेगा, 9625 के पास हाउ इट इज बिहेविंग ये देखना होगा। एंड फ्रॉम देयर नो वापस वो रिवर्स हो सकता है और होगा, तो और RC 261.8 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 9540 9529 9625 ये सब भाव के पास कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, और फ्रेश बाइंग वहां पे नहीं करनी चाहिए। बाइंग की पोजीशन है तो ये सब प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स होगा, और एनी स्टॉप एंड यूज टू सेल फ्रॉम देयर। वैलिड सेल भी है, और वैलिड सेल में कोई भी स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है तो पहले वो बीडीपी तक की जर्नी होगी, फिर बीडीपी से वो वापस रिट्रेस होगा, फिर रिट्रेस होके फिर जब ये 9300 के नीचे जाएगा एंड देन नो इट विल कम टू 9156। ये हमने पहले भी बात की थी, 3+1 का जेजीडी है और कल का कल नहीं आता है, और स्टॉप एंड यूज टू कल होता है तो आगे पीछे वो जर्नी कंप्लीट करेगा। कल का कुछ या तो पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय होगा, या तो कल का कुछ पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस होगा। तो पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस और पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय जो भी होगा, उस स्टॉप लॉस से जब भी आने वाले सब्सिक्वेंट डेज में सेलिंग आएगी तो वापस आई डोंट नो हाउ टू से दिस, एक तरफ बाइंग है, एक तरफ हम 9156 की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे बाइंग जो है, जो हम बात कर रहे थे 9142 से 8900 से, तो यहाँ पे 9540 कल देखेंगे, लाइव वेबिनार भी रखेंगे, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। वी नीड टू वॉच आउट 9540 9529 एंड 9625, जो मुझे नहीं लगता है कि एक बार में इजीली ट्रेड कर पाएगा, और वहाँ पे एक बार बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी चाहिए, प्लस बाइंग नहीं करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी मैसेज है सर, वहाँ भी 3+1 जेजीडी है, फॉलिंग चैनल में है, 3+1 का जेजीडी फॉलिंग चैनल में है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। टूट के खुलता ना तो बढ़ जाए, बड़ा और टिक जाता,
लेकिन बढ़ के खुलता है 3+1 JGD को रेस्पेक्ट किए बगैर। यूजुअली हमने देखा है, अभी भी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि आगे पीछे वो निफ्टी ने जितनी वो कम्पीट की, उसका पीसीआर और पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय जो है वो ट्रेड किया ही नहीं, और आगे पीछे JGD की जगह कम्पीट की। तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि बढ़ रहा है। और आज भी हमने जितनी भी स्क्रिप्ट बात की, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, कोलपाल, PHC, LNT, इंडिगो को छोड़ के बर्जर पेंट, इसमें हमने बर्जर पेंट हमने सेलिंग की बात नहीं की, बाइंग की बात की। बाकी सब जो है इंडिगो और बर्जर पेंट को छोड़ के जितनी भी स्क्रिप्ट हमने देखी, सेलिंग ही है। तो ठीक है, दिस राइजिंग प्राइस इज ए, इट विल सस्टेन 9625 भी ट्रेड करेगा आगे पीछे, लेकिन वहां से एक बार रिट्रेस होके फिर वापस बाइंग आएगी। और ओवरऑल निफ्टी में बाइंग में रहना है, बट कल बाइंग इस भाव में नहीं करना है, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल अबाउट निफ्टी। जाऊं मैं? They leave the webinar. Anybody wants to correct my view? Any senior participants? किसी को मेरा व्यू करेक्ट करना है? चलो, love you all. Thank you. All the best. Good night.